آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف ہمارے پاس تھیوریٹیکل فزکس کی کچھ جدید تحقیقات ہیں اور دوسری طرف 1400 سال پرانی ایک مذہبی کتاب کے کچھ حصے، اور ہمارا کام ان دونوں کے درمیان جو بظاہر فاصلہ ہے اسے جوڑنا ہے۔ اور اس سب کا آغاز ایک بہت ہی آپ کہہ لیں گہرے خیال سے ہوتا ہے۔ سوچئے کہ آپ کی پوری زندگی 70-80 سال، ہر صبح، ہر خوشی، ہر غم، سب کچھ جب آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو کیسا محسوس ہوگا؟ صرف ایک صحت پہر کی طرح۔ یہ ایک چونکا دینے والا سوال ہے۔ کیا ہو اگر وقت کے بارے میں ہمارا سارا تصور ہی ایک فریب ہو؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ دونوں ذرائع جو بالکل مختلف لگتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ یہ خیال کہ ہماری پوری زندگی ایک مختصر لمحے میں سمٹ جائے گی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جدید سائنس اب سمجھنا شروع ہوئی ہے، اور جس کی تفصیلات حیران انگیز طور پر ان پرانے صحیفوں میں پہلے سے موجود ہیں۔ جی، ایک ایسی سمجھ جو حقیقت کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل سکتی ہے۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے، ہماری یہ زندگی کی سپیر ختم ہو رہی ہے، اور شاید ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ تو چلیں اس پر گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ سب سے پہلے سائنس کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں البرٹ آئنسٹائن کا 1905 کا نظریہ ٹائم ڈائلیشن بہت نمایاں ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو اکثر سننے میں آتا ہے، لیکن سچ کہوں تو آج بھی یہ میرے ذہن کو گھما دیتا ہے۔ ہاں، یہ ہے ہی ایسی چیز۔ آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ہے کیا؟ بالکل۔ آسان لفظوں میں آئنسٹائن نے یہ ثابت کیا کہ وقت مطلق نہیں ہے۔ مطلق نہیں ہے مطلب؟ یعنی یہ کائنات میں ہر جگہ، ہر کسی کے لیے ایک ہی رفتار سے نہیں چلتا۔ یہ ایک لچکدار چیز کی طرح ہے جو رفتار اور کشش ثقل یعنی گریوٹی کے حساب سے پھیل اور سکڑ سکتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے فون میں جو جی پی ایس ہے وہ اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ واقعی؟ جی، زمین کے مدار میں جو سیٹلائٹس ہیں ان پر وقت زمین کے مقابلے میں تھوڑا مختلف رفتار سے گزرتا ہے۔ اگر اس فرق کو مد نظر نہ رکھا جائے تو جی پی ایس چند ہی گھنٹوں میں بیکار ہو جائے گا۔ ٹھہریے، یہ تو حیران کن ہے۔ یعنی وقت واقعی سست اور تیز ہو سکتا ہے؟ جی بالکل۔ اس کو سمجھانے کے لیے وہ جڑواں بھائیوں والی مثال اکثر دی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ میرے لیے سب سے زیادہ ذہن گھما دینے والی رہی ہے۔ وہ بہترین مثال ہے۔ فرض کریں دو جڑواں بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک زمین پر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک ایسے خلائی جہاز میں سفر کرتا ہے جو روشنی کی رفتار کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے جہاز کے اندر شاید صرف چند سال گزریں، لیکن جب وہ واپس زمین پر لوٹے گا تو یہاں صدیاں گزر چکی ہوں گی۔ اس کا بھائی، اس کے بچے اور ان کے بچے بھی بوڑھے ہو کر مر چکے ہوں گے۔ ایک ہی کائنات، ایک ہی لمحے میں پیدا ہوئے دو بھائی، اور وقت کا تجربہ اتنا مختلف کہ ایک کے لیے چند سال دوسرے کے لیے کئی نسلوں کے برابر ہے۔ یہ خیال ہی پاگل کر دینے والا ہے۔ تو فزکس یہ کہتی ہے کہ وقت خارجی طور پر لچکدار ہے، لیکن ہمارے ذرائع ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شعور، ہماری اندرونی حالت بھی وقت کے ادراک کو بدل دیتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جدید فزکس اور نیورو سائنس اب اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارا شعور وقت کا ایک فلٹر ہے۔ فلٹر؟ کس طرح کا فلٹر؟ مثال کے طور پر وہ لوگ جو موت کے قریب کے تجربات سے گزرے ہیں اکثر بتاتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی کسی فلم کی طرح سیکنڈوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ صحیح۔ دوسری طرف جو لوگ گہرے مراقبے یا دھیان میں ہوتے ہیں ان کے لیے گھنٹے منٹوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے۔ کسی حادثے یا شدید صدمے کے وقت ایک سیکنڈ بھی ایسا لگتا ہے جیسے صدیوں پر محیط ہو۔ دماغ اس لمحے کو سلو موشن میں محسوس کرتا ہے۔ بالکل۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہمارا شعور وقت کے احساس کو اتنا بدل سکتا ہے تو جب یہ شعور اس دنیا سے مستقل طور پر چلا جاتا ہے، یعنی موت کے وقت، تب کیا ہوتا ہے؟ وقت کا احساس کیسا ہوگا؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمارے دوسرے ذرائع یعنی قرآن 1400 سال پہلے دے چکے ہیں۔ اچھا۔ ایک آیت ہے جو اس پورے تجربے کو بیان کرتی ہے۔ جس دن وہ اسے قیامت کو دیکھیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں ایک شام
या उसकी सुबह तक ही ठहरे थे। ये आयत नाकाबिले यकीन है। ये कोई शायरी या इस्तिआरा नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल नफ्सियाती टाइम डायलेशन की एक तिब्बी वजाहत की तरह है। यानी पूरी जिंदगी, उसकी तमाम खुशियाँ, गम, कामयाबियाँ, नाकामयाबियाँ, सब कुछ सिर्फ एक शाम की तरह महसूस होगा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब एक झपक में खत्म। वाह। और ये कोई अकेला बयान नहीं है। एक और आयत इसकी तस्दीक करती है। जिस दिन वो उन्हें इकट्ठा करेगा तो गोया वो दिन की एक घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरे थे। 21वीं सदी में न्यूरोसाइंस ने इस अमल को एक नाम दिया है ना? जी, इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टाइम कंप्रेशन। ये एक बहुत तकनीकी नाम लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी याददाश्त एक वीडियो कैमरे की तरह काम नहीं करती जो हर सेकंड को रिकॉर्ड करे। अच्छा। जब हम माजी के लंबे अरसे को याद करते हैं, खास तौर पर एक बदली हुई शऊरी हालत से, तो हमारा दिमाग सिर्फ अहम जज्बाती लम्हात को पकड़ता है और बाकी तमाम गैर अहम वक्त को आप कह लें हज़फ कर देता है, यानी कंप्रेस कर देता है। बिल्कुल। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी 10 घंटे की फिल्म को उसके 2 मिनट के ट्रेलर में देख रहे हों। कुरान जिस तजर्बे को बयान कर रहा है, साइंस आज इसकी हयातियाती वजह दरियाफ्त कर रही है। वाह। तो ये दुनिया और आखिरत के वक्त के मुवाजने को एक बिल्कुल नई रोशनी देता है। एक हदीस भी है जो इन जराए में शामिल है, जो इस फर्क को बहुत ही ताकतवर अंदाज में बयान करती है। जी, वो हदीस दुनिया और आखिरत के पैमाने का मुकम्मल नक्शा खींच देती है। क्या है वो? कहा गया है, दुनिया आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डुबोए और फिर देखे कि वो क्या लेकर लौटती है। इस तमसील की गहराई, जी, इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए इसे खोलते हैं। यानी वो एक कतरा जो उंगली पर लगा रह जाता है, वो हमारी पूरी जिंदगी है। आपकी हर कामयाबी, हर खुशी, हर गम, हर सल्तनत, हर मिरास, सिकंदर आजम से लेकर आज तक की तमाम तारीख, सब कुछ उस एक कतरे में है। और वो पूरा समंदर? वो पूरा समंदर जिसकी कोई हद नहीं, जो हमारी समझ से बाहर है, वो अबदियत है। ये एक ऐसा पैमाना है जिसे हमारा दिमाग समझने से कासिर है। और जराए बताते हैं कि ये एक कायनाती सच्चाई थी जिसे कसम खाकर बयान किया गया है। जी, लेकिन मौत और उस अबदी समुंदर के दरमियान भी एक जहां है, एक दरमियानी हालत। आप बरज़ख की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मौत और क़यामत के दरमियान का पोशीदा जहां, एक इंतजार गाह। उसके बारे में हमारे जराए क्या कहते हैं? वहाँ वक्त का तस्वुर कैसा है? वहाँ वक्त का तस्वुर इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ साल दिल की धड़कनों की तरह गुजरते हैं और सदियाँ सुबह की धुंध की तरह तहलील हो जाती हैं। और उसकी मिसाल? सबसे बेहतरीन मिसाल असहाबे कहफ के वाक़े में मिलती है। वो लोग अपने ज़माने के जुल्म से बचने के लिए एक गार में पनाह लेते हैं और अल्लाह उन्हें सुला देता है। और जब वो बेदार होते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ही गुजरा होगा, लेकिन हकीकत में 309 साल गुजर चुके थे। जी, और ये सिर्फ उनका वहम नहीं था, ये उनका हकीकी मौजूई तजुर्बा था। उनके लिए वक्त सुकड़ गया था, जबकि बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। तो इसका मतलब है कि हर वो इंसान जो इस दुनिया से जा चुका है, उस वक्त इसी हालत में है। ज़राए के मुताबिक जी, और यही हम सबका मुस्तकबल है। सवाल ये नहीं कि ऐसा होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब हमारी आंख खुलेगी तो हम अपने साथ क्या लेकर गए होंगे। यहाँ से बात और भी गहरी हो जाती है जब हम वक्त के बहाव को कायनात के सबसे बड़े पैमानों पर देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने नफ्सियाती वक्त की बात की, लेकिन हमारे ज़राए में एक आयत है जो वक्त को कायनाती सतह पर बयान करती है। फरिश्ते और रूह उसकी तरफ एक ऐसे दिन में चढ़ते हैं जिसकी मिकदार 50,000 साल है। एक दिन 50,000 साल के बराबर। अब एक शक करने वाला ये कह सकता है कि ये तो सिर्फ एक इस्तिआरा है, किसी बहुत लंबे और मुश्किल दिन को बयान करने का तरीका। लेकिन हमारे फिजिक्स के ज़राए इसकी एक और ही तस्वीर पेश करते हैं। जी, और यहीं पर ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का तस्वुर सामने आता है। ये आइंस्टाइन के नजरिए का दूसरा हिस्सा है। बिल्कुल। उसके मुताबिक जहाँ कशिश सकल बहुत ज्यादा होती है, वहाँ वक्त सुस्त हो जाता है। जैसे कि ब्लैक होल के करीब। बेहतरीन मिसाल, एक ब्लैक होल के किनारे पर जहाँ कशिश सकल लामहदूद है, वक्त तकरीबन रुक जाता है। वहाँ गुजारा गया एक लम्हा
बाहर की दुनिया के लाखों सालों के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको आसान बनाते हैं। जैसे एक भारी गेंद को एक चादर पर रखें तो चादर में गड़ा पड़ जाता है। तो क्या कशिश सकल भी वक्त की चादर में ऐसा ही गड़ा डालती है? ये एक बेहतरीन मिसाल है। स्पेस टाइम को एक फैली हुई रबड़ की चादर समझें। एक भारी चीज जैसे सूरज उसमें एक गड़ा बनाती है। अगर कोई चीज इससे भी ज्यादा भारी हो जैसे ब्लैक होल, तो वो गड़ा तकरीबन एक बेपनाह गहरी खाई जैसा होगा। और वक्त? अब वक्त को एक ऐसी गेंद समझें जो उस चादर पर लुढ़क रही है। उसे उस गहरे गड़े से गुजरने में ज्यादा रास्ता और ज्यादा वक्त लगेगा। अब इस साइंसी हकीकत को उन कुरानी बयानात के साथ जोड़कर देखें। जी, कुरान बताता है उसकी कुर्सी ने आसमानों और जमीन को घेर रखा है। और फिर एक हदीस में उसकी वुसअत का अंदाजा इस तरह दिया गया है कि सातों आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक सहरा में एक अंगूठी फेंक दी जाए। और फिर वो कुर्सी अर्शे इलाही के मुकाबले में ऐसी है जैसे सहरा में एक अंगूठी। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी शय जो इतनी वसी और अजीम हो, उसकी कशिश सकल कितनी शदीद होगी। इसका वजन और कमियत यानी मास हमारे तसव्वुर से बाहर है। अगर हम फिजिक्स के उसूलों को यहाँ लागू करें तो इतनी शदीद कशिश सकल बिल्कुल उसी तरह की टाइम डायलेशन पैदा करेगी जैसा कि कुरान में बयान किया गया है। यानी एक ऐसा मकाम जहाँ एक दिन 50,000 जमीनी सालों के बराबर हो जाता है, फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक बिल्कुल मुमकिन है। जी, ये मुमकिनात के दायरे में है। ये तो जहन को बिल्कुल सुन कर देने वाली बात है। ये हमें हकीकत की एक और पड़त की तरफ ले जाता है। हमारे फिजिक्स के जराए में स्ट्रिंग थ्योरी और 11 जहतों यानी 11 डायमेंशंस का जिक्र भी है। ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा लगता है। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। जब फिजिसिस्ट जहतों की बात करते हैं तो उनका मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी हरकत करने की आज़ादी होता है। हम 3 मकानी जहतों का इदराक करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। जी, और एक ज़मानी जहत यानी वक्त। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि शायद मजीद 7 जहतें भी मौजूद हैं, लेकिन वो इतनी छोटी और सिमटी हुई हैं कि हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हमारे मजहबी जराए में 7 आसमानों का जिक्र बार बार आता है। जी, क्या ये मुमकिन है कि इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक हो कि ये 7 आसमान वही पोशीदा जहतें हों? ये एक दिलचस्प नजरिया है जिस पर कुछ लोग बात करते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि हर जहत के अपने कवानीन, अपनी फिजिक्स और वक्त का अपना बहाव हो सकता है। तो शायद इसीलिए फरिश्ते एक दिन में उन जहानों को उबूर कर लेते हैं। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में 7 आसमानों का सफर किया। वो शायद उन जहतों से गुजर रहे थे जहां हमारे वक्त और फासले के कानून लागू नहीं होते। हम एक कसीरुल जहती हकीकत में जी रहे हैं, लेकिन हमारा इदराक सिर्फ 4 जहतों तक महदूद है। बिल्कुल ठीक है, हमने आइंस्टाइन, न्यूरोसाइंस, बरज़ख और स्ट्रिंग थ्योरी तक का सफर कर लिया है। ये सब बहुत बड़ा और तजरीदी है। आइए से वापस अपनी जिंदगी पर लाते हैं। जी, ये जरूरी है। इस सब का मतलब क्या है एक आम इंसान के लिए जो अभी ये सुन रहा है? इस पूरे तस्वुर को महसूस करने के लिए एक छोटा सा तजुर्बा किया जा सकता है। कैसा तजुर्बा? सिर्फ 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और दिल में 10 तक गिनें। ठीक है। जब आंखें खुलेंगी तो जो एहसास होगा, एक लम्हे का एहसास। ज़राए के मुताबिक क़यामत के दिन पूरी जिंदगी का एहसास बिल्कुल वैसा ही होगा। वो तमाम यादें, बचपन का घर, वालिदैन के चेहरे, शादी का दिन, बच्चों की पहली हंसी, पूरा कैरियर, सब कुछ एक ही सोच में, एक ही लम्हे में सिमट जाएगा। जी। और तब हसरत का एहसास पैदा होगा कि काश मैंने ये कर लिया होता। मैंने सोचा था मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, मैं जल्दी खुद को बदल लूंगा, मेरे पास बहुत वक्त है। मगर वो कल तो गुजर चुका होगा। वो पूरी जिंदगी एक सहपहर थी जो खत्म हो गई। कुरान इसीलिए कहता है, दुनिया की जिंदगी तो बस खेल और तमाशा है। हम एक ख्वाब में जी रहे हैं जो हकीकत की तरह महसूस होता है, लेकिन असल हकीकत से टकराने का वक्त बहुत करीब है। आपकी दोपहर खत्म होने वाली है, सूरज ढल रहा है और साए लंबे हो रहे हैं। तो फिर इन सब का खुलासा क्या है? मतलब ये है कि जब 70 साल सिर्फ चंद घंटों की तरह महसूस होंगे तो असल करेंसी वो नहीं होगी जो हमने कमाई, बल्कि वो होगी जो हमने आगे भेजी।
اصل کامیابی وہ نہیں ہوگی جو ہم نے حاصل کی، بلکہ وہ ہوگی جو ہم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف ایک بار وقت کی قسم کھائی ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ نے وقت کی قسم شاید اس لیے کھائی کیونکہ وقت ہی سب سے بڑا امتحان ہے، سب سے بڑا فریب اور سب سے بڑا تحفہ جسے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بیداری کا پیغام ہے۔ کل نہیں، ابھی آپ کی دوپہر ختم ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے، اسے کارآمد بنائیں۔ واللہ اعلم۔